Hello, guys. Welcome to the podcast series Wisdom with Joy. And in this first episode of our podcast, we are having as a guest Urjit Dave. He's my brother, and we have talked about mind, matter, law of attraction, law of vibration, and how to actually manifest your goals, money, and beautiful relationships in your life. I'm sure that you'll be having a lot of things to note down in this episode. And at the end of this podcast, you'll be much more educated. You'll have more depth, more wisdom about your life, the real actual things about the matter and all. And you'll learn a lot of new things. Hello, guys. Welcome to Wisdom with Jay, the podcast series which I'm starting right now. And as first podcast is very special, and so is our today's guest. He's someone whom I look up to every time when I've got some problem. He's an entrepreneur. He's a personal development geek. He's into this personal development, personal growth journey since last 10 years. And he has got so much depth. He's an incredible person, and he's got so much value, so much information in his mind that he's gonna share with us today. So I welcome Urjit. Thank you, Jai. Thanks for having me. Thanks for that lovely introduction. It's my honor, man. So I know that you got so much depth in yourself. That I also know that you read like n numerous books and all, right? So I believe books has been your constant source of inspiration. Yes. Like the knowledge, the wisdom you gain every time. Yes. So, yes, books have been the constant source of inspiration. My journey started when I was in ninth standard, actually. Okay. That's when the first time I saw the movie called The Secret. Okay. And that too was an accident because it was not meant for me, it was meant for my brother. So Acha. what happened was some teacher in his school recommended that you see this movie to my Okay. brother. Yeah. Now my brother was watching it on our television and I happened to sit along with him at that time. And during that session, I got to learn about stuff, learn about personal development, learn about law of attraction and the stuff that they were talking about Yeah. inside that movie. And that began the spark of, exploring myself, exploring the mind, exploring this inner dimension, Yeah. and exploring this all concepts of self development and personal development. So that's the first one where it really ignited the spark inside Spark in me yours. to. So it's The Secret, right? Yeah, By so, Rhonda Byrne. yeah. So the movie, Okay, yeah, the the movie by movie, Rhonda Byrne, yeah, got not it. the book. Yeah. But after that movie, what happened is I started, implementing things which were shown in the movie. So I made a vision board for myself, Oh. and I, wrote stuff on that. I wrote my goals on a piece of paper and pasted them on the vision board. Yeah. And I started doing visualization and everything. And I don't know if it was luck or it was something I did right at that time that I had my first manifestation experience. That what I put on my vision In board. the same year itself? Yes, in that same Oh. year itself. So it was, as you said, it was 10 years ago in 2012. So in 2013, that same year itself, I got my goal manifested. Means the whatever I had put on that board exactly came true. So that kind of spooked me that maybe I This am is for real. yeah, I am onto something. I think I have hit something by mistake, but which I don't know entirely what is happening, how it is done and everything. Okay. But this is something which most people don't know, or most people are not aware of how to Not do aware it. of. Yes, and that is the first time that I realized that okay, now I have hit something which I think is not taught everywhere in school, not known to much people. Yeah. But I should explore it because this time I have done it by mistake. Yeah. But now I want to do it consciously for the rest of my life, right? So that's the moment that I started exploring the inner journey. Then I started following mentors, started reading books, started following their courses, Yeah. and that's how that journey began. So can you just explain what was it, the experience that you Yeah. just So Thank the you. thing was, I was in class 10th Yeah. of my boards, and it was boards. So class 10th has a special importance in Yeah. everyone's life, right? Yes. So what I saw inside that movie, The Yeah. Secret, was there was a guy who wanted a bicycle for himself, right? Yeah. And what he did was he cut paste a photo of a Picture of bicycle, bicycle. yeah, and pasted it on his board and used to visualize it. So that struck me that okay, I should do something similar. So I wrote on my paper, there was simple chart paper, and I wrote on top of it that I want to get 92 percentage Yeah. in my 10th.
Now, believe me, before 10th, I was not going to tuitions. I was a good student. Yeah. I used to get 80, 85, around that much. I had never gone to the 90% mark in my entire school life until 9th standard. Oh. And until 9th standard, I was not going to any tuitions as well. Yeah. So I was not that studious. I was more into sports and doing extracurricular activities and things like that. Okay. So 10th, what happened? I wrote that on a piece of paper, pasted it on my room, studying. And I used to study as normal. I don't mind. I mean, I was studying regularly. What happened is when I did prelims, my prelims was there in January and around the same time. And when the prelim result came, it was around 88%. Okay. So everybody suggested, okay, in board also you'll get around same, somewhere around the same prelim marks, right? But when I completed my boards and when the result came, I still remember the date. It's 13th June 2013. So that was the date. And that date when the result came, I looked it up online. It was 4:30 in the morning because at that time results used to come at midnight. Yeah, and people used to call me. Yeah, and I was asleep. But my cousin called me that come on, the result has came. He had also got his result. Yeah. Said come on, look it up and tell me what is it. So I looked it up, and to my surprise, it was 552 out of 600, which exactly translates to 92%. Oh, exact. Not even 92.1, not 91.8. If it was 551 or let's say 553, then it would not have been 92. It would have been 50, 91.8 or 92.3. Nothing doing. 552 out of 600. Oh. So that was dot 92. So that's the moment that I thought that because this is not entirely a coincidence. Yeah. If it was near about 992, I would have thought that okay, I was targeting for it and I got near it. Yeah, so if it was 550 or let's say 5, so I might have thought that okay, I targeted for this much and it might be a coincidence. But you see, all these papers, and that time I had 30 marks were given by school, 70 marks by board, and everything was there. And every subject, each paper going to different teachers. Everybody is getting compiled. At the end, it all summed up to 90. Yes, so that was the most spooky part for me. That after the entire everything comes up, all the board exam papers come up, and the result is aggregated. Then it turned out to be 552. So that's incredible, man. That's mind-boggling. But something similar to that happened with me also. Okay. Like I wasn't like a lot of principles which I follow in my life. I was knowing them since like I was in 9th standard, 10th standard. Yes. So बहुत सारे principles है, बहुत सारे habit patterns जो है मेरे को पता है कि मतलब this leads to this thing. And I was knowing since back then. But लेकिन social media use करने के बाद मुझे पता चला कि इसको procrastination बोलते हैं, इसको law of attraction बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं. So I don't know from where did I get that. लेकिन हाँ मुझे वो principles कुछ ना कुछ मतलब I used to form that. So something similar to that happened with me also. Like in my vacations after 10th exam. मुझे एक सपना है and in that I was telling my aunt like she called me like what's your result. It was before 3-4 days of result was declared and I told her that I got 98. I didn't know कि मतलब क्या आएगा क्या है. तो फिर रिजल्ट आता है and I got exact 98%. Right, yeah. So I don't know from where did I get that. लेकिन कुछ तो थी वो चीज. Yeah. So the reason that my personal development journey started after that was कि उस टाइम मुझे समझ में आया कि अच्छा कुछ ऐसी चीज है कि इस बार तो तुक्का लग गया ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि मुझे पूरा नहीं पता कि कैसा हुआ क्या हुआ. बट इसका कोई प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए तभी जाके ये होती. सो वो स्टार्ट किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया. तो फिर मैंने वो जो द सीक्रेट में जितने भी मेंटर्स थे, जितने भी वो थे, उनके सबके इंडिविजुअल कोर्सेज देखे, इंडिविजुअल बुक्स पढ़ी, उनके सारे कोर्सेज को फॉलो किया, उनको सब जगह फॉलो किया. उस टाइम सोशल मीडिया जस्ट स्टार्ट हो रहा था 2013-14 में, तो सब जगह उनको फॉलो किया, उनका कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया. और फिर वो मोमेंट से मेरा स्टार्ट हुआ पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी का कि अच्छा क्या होता है माइंड, क्या होता है मेटाफिजिक्स, क्या होता है विजुअलाइजेशन, कैसे गोल सेट होने थे. उस टाइम तक तो क्या था, जो पिक्चर में देखा था वही कर रहे थे. सही. कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था, कोई प्रॉपर थॉट प्रोसेस नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है. तो पहला वाला तो तुक्का ही था. लेकिन उसके बाद फिर देन आई रियलाइज्ड ओके दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर, कैसे करते हैं और क्या माइंडसेट होना चाहिए. कभी भी ऐसी कोई चीज को आप जब मैनिफेस्ट करना ट्राई करते हो तो क्या चीज होनी चाहिए आपके माइंड में और क्या प्रोसीजर होता है उसका और क्या साइंस है उसके पीछे, एक्चुअल टेक्निक्स एंड द साइंस. या तो प्रोसीजर और साइंस मतलब ये होता कैसे. अभी मुझे तो पता चल गया कि आ गया, बट आई टोल्ड यू कि वो मैं समझ नहीं पाया पूरा कि एग्जैक्ट 552 आउट ऑफ 600 कैसे आ सकता है.
this means that something had to do with my intention as well. So you went deep into So I went deep into it और मैंने उसमें सबसे बड़ा हाथ था बॉब प्रॉक्टर का क्योंकि उनका जो he's an advocate of law of attraction, right? Yes, so he's a personal development coach. He just recently passed away first week of Feb. And उनका जो पढ़ाने का तरीका था, उनका जो सारी उनकी जो टेप्स पढ़ी देखी मैंने, उनकी जो सारी बुक्स पढ़ी, उनका जो पढ़ाने का तरीका था, it was scientific as well as metaphysical. Metaphysical is beyond physics. Physics is what? Physics is the study of the physical realm of things. Okay. हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे कैसे पड़ता है, उस पर फोर्स कैसे अप्लाई होता है, मतलब जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है उसके, एनर्जी, पावर, फोर्स, ये सारी चीजें. मेटाफिजिक्स इज स्टडीइंग द नॉन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ reality, beyond physics. So and that too is not entirely non physical. उसमें कई कॉन्सेप्ट्स क्वांटम फिजिक्स के भी इंक्लूड होते हैं, कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी है कि जो जिसका फिजिकल उसमें नहीं होता. अच्छा. बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. तो वो पढ़ना शुरू किया, वो बुक्स देखना शुरू किया और उन्होंने जो समझाया पूरा कि माइंड कैसे काम करता है और हमारे थॉट्स कैसे इंस्पायर होते हैं, हमारे थॉट्स कैसे ट्रांसलेट होते हैं एक्शन के अंदर. वो पूरा जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो उनकी तरह से ही पता चला मुझे. एंड दैट रियली हेल्प मी टू शेप माय फ्यूचर गोल्स इन लाइफ. उसके बाद 10th कैसा एक जंक्शन होता है. 10th के बाद आपको बहुत सारी चॉइसेस करनी होती है. अब साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है. साइंस में जाने के बाद कौन से इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, कौन से फील्ड में जाना है, किस में आपको करियर बनाना है आपका. सो देयर वर लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो वंस यू नो दैट, उसमें क्या है कि जितना आपका माइंड क्लियर होगा, जितना आपका माइंडसेट क्लियर होगा, उतना आपको रास्ता तुरंत मिलता जाएगा. So the more finalized your goals are, yes, like recently Tim Ferriss posted that, right? Yeah. So it was something like कि मतलब जितने ज्यादा thoughts, जितने ज्यादा actions आप लेना चाहेंगे, यूनिवर्स उतना आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है और जितना स्पेसिफिक वो वांट रहेगा. Yeah. So the quote was कि universe rewards the specific ask while ignores the generalized request. Yeah. Generalized request को ignore करता है पर specific ask को regard. So that was one big part of it. मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ ही पढ़ रहा था 10th में. वो उससे जब देखा कि मैंने मेरे घर पे ऐसा चिपकाया है, तो मेरे घर पे आता था पढ़ने के लिए साथ में, तो वो देखता था कि इसने लगाया, उसको लगा मुझे भी लगाना चाहिए, क्या पता ये काम कर दे. तो उसने लगाया था, लेकिन उसने क्या लिखा था कि I want to get 90+% in that. Not exact value. Yeah. 90+, तो उसके भी आए 90, पर उसके 91 ही आए. और वो उसके ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है उसकी, मतलब वो बोर्ड की एग्जाम के पहले सारे एग्जाम्स में, सारे टेस्ट में हम लोग साथ ही पढ़ते थे, सब साथ में करते थे. उसके सभी टेस्ट में, सभी एग्जाम्स में मेरे से ज्यादा मार्क थे. सभी एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में भी ज्यादा थे, हर क्लास टेस्ट में भी ज्यादा थे, हर ट्यूशन के टेस्ट में भी ज्यादा थे. लेकिन बोर्ड में पता नहीं क्यों, लेकिन लास्ट में मेरे 92 थे, उससे कुछ 91 पॉइंट, उसके 5 या 6 मार्क्स कम से मेरे. So universe rewarded the exact want. So that is what I'm saying कि जहाँ पे जनरलाइज्ड रिक्वेस्ट होती है वहाँ पे you don't know that it is exactly what you want. So you don't know whether it will manifest or not. Yes. तो जितना exact, जितना specific रहेगा, Yeah. like even what I've known, what I've understood from law of attraction is कि like it comprises of 3 things, like concise positive thoughts, उसका affirm करते रहो, and then it manifests itself. Yeah. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बहुत इंटरेस्टिंग है. उसमें जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें एक देयर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ दैट. इट इज कॉल्ड फैंटेसी थियरी फैक्ट. ओके. ट्रायंगल है, ऊपर है फैंटेसी, यहाँ पे थियरी, यहाँ पे है फैक्ट. सो हाउ दिस 3 ट्रांसलेट्स. द फर्स्ट इज फैंटेसी. तो फैंटेसी का मीनिंग ये है कि हमें पहले यू हैव टू फैंटेसाइज, यू हैव टू इमेजिन तुम्हें कहीं चाहिए क्या. ठीक है. सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट इज फैंटेसी. नाउ इट इज जस्ट इन योर कॉन्शियस माइंड. आपने सिर्फ सोचा है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, या मुझे ये परसेंटेज चाहिए, या मुझे ये करियर में ये ऑप्शन चाहिए, या ये जॉब चाहिए, या ये बिजनेस करना है. सो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज फैंटेसी. द नेक्स्ट इज थियरी. थियरी में क्या है कि आप उसके थॉट्स असेंबल करना शुरू करोगे. अच्छा मुझे ये करना है तो ये कैसे हो पाएगा, कौन से रिसोर्सेज है, कौन से वो मेथड्स है, कौन से वेज है, उसको आप एक्सप्लोर करना शुरू करो और स्टार्ट ब्रिंगिंग थॉट्स. थियरी में एक ही एस्पेक्ट है, थियरी में एक ही क्वेश्चन है आपको पूछना है अपने आप से कि हाउ कैन आई डू इट. ये कभी भी नहीं सोचना है कि हाउ कैन आई नॉट डू इट, क्योंकि उसके इसमें क्या है कि ब्रेन हमारा इतना पावरफुल है कि आप जो भी ढूंढना चाहोगे ना वो मिल जाएगा. इफ यू लुक फॉर रीजंस व्हाई यू कैन नॉट डू इट तो वो भी मिल जाएगा. इफ यू लुक फॉर द रीजंस व्हाई यू कैन डू इट वो भी मिल जाएगा. So the thing is what you are looking for. Yeah. So even like Bob Proctor says in his videos, like if you search for a red car, so 10 गाड़ियों में से आपको सिर्फ रेड कार ही दिखेगी. Yes, and that is and उसमें साइंस ये है कि हमारे ब्रेन में सेंसरी गेटिंग होता है. आप सोच के देखो आपको रियलिटी आपको कैसे महसूस होती है. हियर सी स्मेल टेस्ट टच, जो 5 सेंसेस होती है हमारी, उससे हमारे हमको रियलिटी महसूस होती है. उस रियलिटी में से हजारों साउंड आ रहे हैं, हजारों
चीजें दिख रही है हजार, तो हमारा ब्रेन फोकस किस पे करेगा? तो हमारे ब्रेन के पास एक सेंसरी गेटिंग की मैकेनिज्म है कि जिसमें वो डिसाइड करता है कि किस चीज पे फोकस करना है। वो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस चीज पे फोकस करना है। अच्छा, अगर किस आपने कुछ डिसाइड नहीं किया तो ब्रेन बाय डिफॉल्ट देखेगा। पर अभी जैसे आपने बताया रेड कार्ड, तो मैं आप 10 बार रेड सोच के देखो, रेड कार्ड, और ऐसा रेड कार्ड नहीं, रेड स्विफ्ट रेड स्विफ्ट रेड स्विफ्ट, और फिर रोड पे जाके देखो, जैसे कोई रेड स्विफ्ट दिखेगी ना, ब्रेन सोचेगा ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये इसको बार बार याद करना है, तो वो आपको तुरंत नोटिस में आ जाएगी। सो दैट इज हाउ द सेंसरी गेटिंग वर्क्स। कि सेंसरी गेटिंग क्या करता है कि जितने इनपुट आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन ब्रेन में, थाउजेंड्स ऑफ न्यूरो सिग्नल्स आर कमिंग ईच सेकंड, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है ना, वो हमारा ब्रेन फिल्टर करके हमारे कॉन्शियसनेस में लाता है। व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड वो कैप्चर उतना ही करता है। यस, सो इट बिकम्स योर फिल्टर। ये रियलिटी का है, उसमें से मुझे क्या देखना है, हाँ, ये मैं मेरा चॉइस है। इट बिकम्स लाइक द स्पेक्स दैट यू आर वेयरिंग टू सी द रियलिटी, राइट? अगर आपने डार्क गॉगल्स लगा दिया तो आपको सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, राइट? सो दैट योर थिंकिंग, योर माइंडसेट बिकम्स द ग्लासेस दैट यू वेयर टू सी द रियलिटी। अमेजिंग। सो दैट्स द मेन पर्पस ऑफ इट। तो यही है कि इसमें फैंटेसी, थियरी, और फिर थियरी में जितना फोकस करोगे कि क्या करना है क्या करना है, उसमें से आपको रास्ता मिलेगा कि अच्छा ये चीज करनी चाहिए, फिर ये चीज करनी चाहिए, फिर ये चीज करनी है, अपने आप रास्ते आएंगे, और देन इट विल टर्न इनटू अ फैक्ट। ओके, या सो दिस इज द these are the three procedures। एंड इसमें क्या है कि ह्यूमन पोटेंशियल एक ऐसी चीज है कि जिसपे हम जो जितनी बात करें उतनी कम है, बट ये ऐसी चीज है कि जिसमें कोई साइंटिस्ट या कोई भी बंदा ये कह नहीं सकता कि ये बंदा इतना ही कर सकता है। तो देयर इज नो या मैं ये कभी भी किसी Limits. या सो मैं किसी भी इंसान को ये नहीं कह सकता कि तुम इतना ही कर पाओगे। अच्छा, देयर आर नो साइंटिफिक इंडिकेटर्स। अगर कोई साइंटिस्ट कहेगा कि ये इतना ही कर पाएगा, तो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स है वो सब रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस 4 मिनट मैन, बहुत फेमस है, 1962 के पहले बहुत फेमस था कि एक बंदा 1 माइल इज अबाउट 1.3 और 1.4 किलोमीटर, राइट? तो इतना डिस्टेंस एक बंदा 4 मिनट के अंदर नहीं कंप्लीट कर सकता। 4 मिनट हमारा फिजिकल बॉडी बना ही नहीं है कि 4 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर सके, 1 माइल रनिंग कंप्लीट कर सके। तो उससे कंपटीशन होती थी बार बार, और हमेशा 4 मिनट्स के ऊपर ही चला जाता था टाइमिंग, जो भी फर्स्ट आता था उसका। फिर हुआ यूं कि रॉजर बैनिस्टर नाम का एक बंदा था, उसने 1962 के में he came under 352 6 seconds, 3.52 seconds. yes, so that is 6 seconds before the 4 minute man, Okay. and he broke the record। और दो सब पेपर्स में आ गया, सब में आ गए, the fastest man on the earth broke the record of 1 mile under 4 minutes। हाँ. उसने जब रिकॉर्ड तोड़ा ना, उसके एक ही महीने में किसी और ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। Oh, so it was just a limit set. The by barrier public. was not Okay. in physical realm, the Yeah. barrier was on the In the mental mind, realm। yeah. या और इसी अकेले उसमें नहीं, पूरे ह्यूमैनिटी के उसमें थी माइंडसेट में कि हम एक माइल 4 मिनट Yeah, में so कंप्लीट कर सकते हैं। there's a limit set by the mass and people follow it. सेम विद माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का स्टोरी पता है आपको? Yeah. तो हमको सबको पता है कि भाई पहले तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी पहुंचे। हाँ. उसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। वो उनका पहला ट्राई नहीं था, फर्स्ट ट्राई ही डिड वाज इन 1951, तब वो फेल हुआ। फिर 52 में वापस गया, Yeah. एडमंड हिलरी की बात Okay. करें, और वो एडमंड हिलरी कोई माउंटेनियर नहीं था। ये लोग सोचते हैं कि वो वहां पे न्यूजीलैंड में पर्वत चढ़ रहा था और यहाँ पे आके चढ़ा, ऐसी बात नहीं है। ही वाज देयर अ बी कीपर यानी कि जो मधुमक्खी पालन का काम करता है वो वाला बंदा था। और वो 51 में आता है, पहली बार ट्राई करता है, फेल होता है, आधे से वापस आना पड़ता है। कंडीशन उसकी वहां पे ऐसी नहीं थी। और ऐसा नहीं कि वो तो पहले ट्राई किया, उसके पहले कई हजारों लोगों ने ट्राई किया था माउंट एवरेस्ट को चढ़ना। हर बार वो या तो मर के आते थे वापस, या वहीं पे फ्रीज हो जाते। 51 में ट्राई किया, फेल हुआ। 52 में ट्राई किया, फेल हुआ। 53 में गया वापस, तब जाके उसको सक्सेस मिली वहीं पे। और तब वो दोनों पहली बार गए। वो दोनों पहली बार गए जब 53 में। उसके बाद 53 में ही एंड में दूसरे लोग भी पहुंचे, 54 में भी पहुंचे, 50 का। अब तो हर साल हजारों लोग जाते हैं। सो माउंट एवरेस्ट तो वही का वही है, उसकी हाइट भी मोर एंड लेस द सेम ही है ऑलमोस्ट। तो चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ ह्यूमन का परसेप्शन और ह्यूमन बीइंग्स की कैपेबिलिटी। तो सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इज कि ह्यूमन पोटेंशियल ऐसी चीज है कि जिसका आप बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते कि ये बंदा यही कर पाए। हम लोग किसी बंदे को कहें कि तेरी ये बस की बात नहीं है, ये कहना गलत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसका बस क्या है। You cannot tell somebody कि you are subjective to each and every person. हाँ, और the thing is so that is the point he was trying to drive कि ऐसी कोई भी चीज नहीं ह्यूमन बीइंग्स के लिए कि जो इम्पॉसिबल हो अचीव करना। That is the point that human potential is limitless। और उसमें लिमिट नहीं कर सकते कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बंदा इसको लिमिट नहीं कर सकता कि आप इतना ही कर पाओगे ऐसा, because that can be challenged। और it is proven by many facts कि ये हुआ है बहुत बार, and that is why this interested me and that is how I started in this journey। तो माउंट एवरेस्ट से मेरे को एक और लाइक कंसेप्ट याद आता है। ही इट्स फ्रॉम नवल।
like he says कि मतलब जो बंदा एवरेस्ट क्लाइम करना चाहता है आधे तक जाता है, लेकिन ऊपर कौन पहुंचेगा कि मतलब जो उसमें उतनी उसकी कैपेबिलिटी मतलब उसमें पोटेंशियल होना चाहिए कि वो रिस्क वो वापस भी आए एंड देन ही फाइंड सम अदर वेज. या वो जो लोग उधर से फिर आगे ट्राई करते हैं दे मोर और लेस समटाइम फेल्स. हाँ, तो ये that is a concept which is called कि you have to change the path, not the destination. Yeah. कि आपको डेस्टिनेशन चेंज नहीं करना है. डेस्टिनेशन आपने एक बार फिक्स कर लिया तो now you have to go to the destination regardless of the path. हम लोग क्या करते हैं कि पाथ को बहुत स्टिक हो जाती है, ये ऐसे ही करना है, हाँ. ऐसे ही करना है. उसमें बहुत सारे फेलियर्स. हाँ, so which is not true, which is not correct way, क्योंकि पाथ में अगर सीधे रिजिड हो जाओगे आप उतना है ना, आप फ्लेक्सिबल नहीं होगे, कोई दूसरा पाथ देख लेंगे. और हो सकता है कि आप जिस पाथ पे उस पाथ सही ना भी हो स्टार्टिंग में, लेकिन even once you are flexible to move, Eventually your pivots path. will help you. Yes, true. So this brings me to the other concept, that is what is law of vibration. Like law of attraction में अपने बात की कि like क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, the models and all. Like what is law of vibration? Because I believe that's the primary law, right? Yeah. Law of attraction is the secondary law and law of vibration is the So there are 7 primary laws of nature. तो इसमें क्या है कि ये भी प्रॉपर ने समझाया था कि ये हमारे जैसे नेचर को हम देखते हैं हमारे आसपास. So there are 7 primary laws. वो हम लोग किसी को पॉडकास्ट में डिटेल में बात करेंगे उसमें. So there is law of rhythm, law of polarity, law of relativity, law of perpetual transmutation, and law of vibration. And there is one more law, law of gender transmutation. So there are 6 laws which are law of nature. वो nature की हर चीज में है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, ह्यूमन बींग्स में है. एंड दीज आर हम देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि लॉज हर जगह है. So it comes into the 5 senses. यस, सो 6 जो 6 रिलेटिव लॉज है, यूनिवर्सल लॉज, उसमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज द प्राइमरी लॉ व्हिच स्टेट्स दैट एवरीथिंग मूव्स, एवरीथिंग वाइब्रेट्स, नथिंग इज स्टेशनरी. So everything out there has some sort of frequency. Yes, and frequency as in it has movement. Okay. And the frequency is like it is not visible through the eye, but it is there. And how can we prove it? कि ये जो frequency होती है वो हर चीज में होती है, हर चीज अपनी तरह से मूव होती है अपने उससे. Yeah. अगर हम किसी भी चीज को देखें, किस चीज कैसे बनती है, it is made of atoms. Yeah. Inside an atom there is electron, proton, neutron. The proton, neutron are also vibrating. The electron is vibrating as well as rotating. Okay. And so the movement at the most atomic level also there is movement in each physical. अच्छा. और इसी तरह से ना वो समझाते थे कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है कि लाइक फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट ईच अदर. Okay. फॉर एग्जांपल जैसे वो समझाते थे अपने उसमें कि मैंने पानी का एक ग्लास लिया, उसमें मैंने ऑयल का एक वो लेकर कंटेनर लेकर उसमें डाल दिया. ठीक. वो दोनों मिक्स नहीं होते. ऑयल ऊपर रहता है, हाँ. पानी नीचे रहता है. क्यों? This explains that this is why, because these both are on different frequencies. These both are different. Oh. This is just a way of understanding. Yeah. Molecular level पर अलग अलग. हाँ. If I add oil and oil, they will mix. Yeah. Water and water, they will mix. Will mix. Oil and water will not mix. Yeah. Similarly, there are some compounds which interact with each other. Some compounds which do not interact with each other. Yeah. This, in general sense, means that only like particles attract each other. Yeah. And they combine to form something new. So this happens with human beings as well. Human beings can create their own vibration by their thoughts. Thoughts is the primary way through which human beings can change and alter their vibration. Oh. Now this is an interesting thing. Now think about it कि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो वो आपकी वाइब्रेशन डिफाइन करती है. अच्छा. आप वो थॉट कितना पावरफुल होगा. हाँ. Like the effect of thoughts on our Yes. life is very immense, right? तो आप जो इस बारे में सोच रहे हो वो आपकी वाइब्रेशन डिफाइन करती है और वही वाइब्रेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं आपकी लाइफ. Oh. So this is a major way of looking at things कि आपको जो लाइफ में रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको, this is 90% or 100% dependent on what is your vibration, physical vibration. That depends upon your mindset. कि आपका mindset कैसा है लाइफ में, what are you looking for, what is your attitude towards things in life, and that determines that what are you attracting in your life. आपकी लाइफ में क्या आ रहा है वो डिटरमाइन कैसे होता है कि आपकी वाइब्रेशन क्या है. Yeah. आप कौन से स्टेट में रहते हैं, फिजिकल स्टेट में, सैडनेस, हैप्पीनेस, anger, anxiousness, these are all vibrations. These are all states of vibration. अच्छा. अगर आप एंग्री हो, बहुत टाइम एंग्री रहते हो, तो your physical vibration stays in that fashion. अच्छा. You get things which will make you more angry. Anger. Like attracts like. So in that sense, that is why it is said that you should think positive or stay in a positive vibration. So, mindset. like a depressed person will always Find things to get depressed, right? Oh. Unless he changes its state. So that is why if you have seen one of the seminars of Tony Robbins, he used to demonstrate it very beautifully.
इफ सर्टन पर्सन कम टू हिज सेमिनार और से कि भाई मैं डिप्रेस हूँ, तो उससे मजाक करने का ट्राई करेगा. अच्छा. सही में क्या क्यों? तो मेरे बोलेगा वाइफ की वजह से डिप्रेस हूँ. अच्छा श्योर, तेरे जूते की वजह से डिप्रेस नहीं है ना, जूते लाल कलर के पहन के आया है तो हंसने लगेगा. व्हाई? सी दिस इज वेरी सबकॉन्शियसली ही इज ट्राइंग टू शिफ्ट हिज स्टेट कि वो सोच रहा है उसकी वाइफ के बारे में, लेकिन ये तो बोल रहा है कि जूते लाल है इसलिए डिप्रेस नहीं है ना, तो वो देख रहा है अटेंशन दूसरी जगह पे ले जाना है. व्हाई? बिकॉज़ ही इज शिफ्टिंग हिज स्टेट. उसको फिर बताता भी है कि जैसे मैंने तुम्हारा स्टेट शिफ्ट किया, तुम्हारे क्या सोचने लगे, तुम भाई के बारे में सोच रहे हो अभी, राइट? सो दैट इज हाउ depressed people can also overcome their alter their states. See, it everything is the entire life is your mind's play. जो भी होता है हमारे लाइफ में वो हमारे माइंड का ही गेम है. तो जो ऐसा आपका माइंडसेट रहेगा वैसा ही आपका लाइफ रहेगा. वो तो एकदम फैक्ट चीज है. डेफिनेटली. तो हाँ, तो उसमें ही वही समझा रहा है वो कि जैसे स्टेट आप चेंज करोगे ना, वो आपका वाइब्रेशन भी ऑल्टर करेगा रियल टाइम में. ओके, रियल टाइम. यस, एंड सी दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. जो बाकी के वो होते हैं हमारे जो ऑर्गेनिजम्स, उनके वो अपनी वाइब्रेशन या फीलिंग्स तभी चेंज कर पाते हैं जब वो किसी और फिजिकल थ्रेट को महसूस करें. ह्यूमन बींग्स ऐसे सिर्फ अकेले ऐसे बींग्स हैं जो अपने वाइब्रेशन को सिर्फ थॉट से चेंज कर सकते हैं. तो वो यही चीज है कि ह्यूमन बींग्स अकेले ऐसे बींग्स है वर्ल्ड में जो अपने वाइब्रेशन को या अपने फिजिकल स्टेट को सिर्फ थॉट से चेंज कर सकते हैं. अगर टाइगर को किसी जंगल में टाइगर है, उसको अगर गुस्सा होना है या उसको एंग्शियस होना है, तो उसको लिए उसको कोई बड़ा जानवर दिखना चाहिए या फिर उसको कोई फिजिकल थ्रेट दिखनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, देन एंड ओनली देन इट विल रिएक्ट. अगर कोई हिरन है, हिरन एक उसके जंगल में घूम रहा है, उसको है ना वो होम्योस्टैटिस मतलब उसके जो बेसिक स्टेट है उसमें रहेगा जब तक कि उसको कोई फिजिकल थ्रेट ना दिखे. जैसे उसको दिखेगा कि कोई आ रहा है या फिर कोई आवाज सुनेगी उसको किसी जंगली जानवर की, देन ही विल स्टार्ट रनिंग, देन ही विल बिकम पैनिक. मतलब उसको जब फिजिकल थ्रेट होता था तभी उसके में एंगर, एंग्शियसनेस ऐसे इमोशंस पैदा होते थे. ह्यूमन बीइंग सिर्फ ऐसे जहाँ पे बैठे बैठे मैं सोचूंगा फ्यूचर में मेरा क्या होगा, जॉब मिलेगी या नहीं, और उसी से एंजाइटी खड़ी हो जाती है. विदाउट दैट थिंग हैपनिंग, विदाउट दैट फिजिकल इवेंट हैपनिंग, आई कैन क्रिएट इमोशन विद माय माइंड ओनली. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट अंडरस्टूड बाय मोस्ट ऑफ पीपल. सोच नहीं पाते लोग कि मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी जॉब तो फ्यूचर में लगेगी, जब भी लगेगी, कुछ भी होगा. I am creating emotions right now, depending upon a future event. With just my mind, and it is creating consciousness inside me, anxiety inside me. So ये जब समझ में आया मुझे, तब मैं सोचा ओ तो मेरे 90% इमोशंस जो मेरे महसूस होते हैं या तो वो पास्ट की चीजों पे होते हैं या फ्यूचर की चीजों पे होते हैं. क्योंकि जब प्रेजेंट में रहता है तो there is no need of thinking like. Yes, so in present there is no, you don't have enough problems, but we are always anxious about the either past future, or present. And or regret about the so regretting about the past or anxious about the future. So that is the dilemma in which we face. So that's why overthinking is a big issue right now. Yeah, and see, people don't understand that why overthinking happens. Overthinking होता कब है कि जब हमें ना हमारे प्रेजेंट से मूव होके पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं. फ्यूचर में इससे मेरे को ऐसा क्यों बोला, इससे मेरे साथ ये क्या हुआ, मैं इतना सारा ट्राई किया फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हुई. So वो सारे जो चीज हमारी सी एनी तो तुम अभी जो पास्ट में चला गया उसका कुछ भी सोचोगे, उससे तुम्हारे पास्ट तो चेंज होने वाला है, उससे जो तुम्हारी प्रेजेंट मोमेंट है वो भी वेस्ट हो रही है. सो दैट डजंट मेक सेंस. तो उसी मोमेंट आप सोचोगे कि अच्छा मैं पास्ट के बारे में सोच के क्या करूंगा, फ्यूचर के बारे में सोचना. इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर बेटर फ्यूचर इट इज गुड. इफ यू आर वरिंग फॉर योर फ्यूचर दैट डजंट मेक सेंस. व्हाई? बिकॉज़ अंटिल अनलेस यू आर फेसिंग बाय इट. मार्क ट्वेन का बहुत बढ़िया कोट है, 90% of my troubles never came true. So they were just in that his mind. It was just in his mind. ये होगा तो ये करेंगे तो ये ऐसा होगा तो ये नहीं हुआ. What if? There was a poem what if करके थी. तो यही था. मार्क ट्वेन को समझ में आ गया था कि मेरे जो 90% प्रॉब्लम्स है वो मेरे सिर्फ माइंड में ही है, सिर्फ मेरे थॉट्स में ही है कि ये ऐसा होगा तो ये होगा तो ये होगा तो. So we don't know the future and so ये it doesn't come naturally. हमको ट्रेनिंग करके कि हमारे माइंड को प्रेजेंट में रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ी मेडिटेशन के थ्रू और अदर प्रैक्टिसेस के. So consciously practicing certain things will help people out. This law of vibration is like it's a vast thing. बोलने में छोटा लगता है. So that brings us to how mind and matter are different, or like the effects. So ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. इसमें क्या होता है कि माइंड एंड मैटर, तो लोगों को डिस्टिंक्शन क्या पता चलता है कि माइंड इज लाइक द मूवमेंट which happens inside a human being's head, right? And matter is what you see in the physical world. जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं,
करता है, ये सारी चीजें मैटर है. it was. सो माइंड एंड मैटर अलग ऐसे है कि these are not actually two things, these are actually one thing, and mind is actually influencing matter. And how that happens is कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फॉर एग्जाम्पल आप आर्किटेक्ट की बात करो, आर्किटेक्ट है तो उसके पास एक ब्लैंक शीट होती है या फिर उसका सॉफ्टवेयर में ब्लैंक कैनवास होता है, उसमें सोचता है कि अच्छा ये जगह है, यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर आएगा, यहाँ पे ये रूम आएगी, वो रूम आएगी. ये बिल्डिंग फिजिकल डायमेंशन में नहीं है, सिर्फ उसके माइंड में है. माइंड से वो कैनवास पे लाता है, उसको उस पर थियरी बना देगा, अच्छा यहाँ पे इतना बाई इतना का रूम आएगा, इतना बाई इतना का किचन आएगा. फिर उसको देता है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर उसको फिजिकल रेल में कन्वर्ट करता है. मतलब आप ऐसे भी देखो कि जो आप फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हो वो सारी चीजें किसी ना किसी के माइंड में से आई है. अब जो भी बिल्डिंग देख रहे हो आपके लाइफ में वो किसी ना किसी के दिमाग में आया होगा कि उसने ये फॉर्मुलेट किया, उसको बनाया डिजाइन को, और उस डिजाइन को किसी ने इम्प्लीमेंट किया. छोटी से छोटी चीज, अगर टेबल देखो तो टेबल iPod's design came from Steve Jobs head. So everything that you see in your physical realm was originally in someone's mind, and from that mind it manifested itself through various things into matter. So this shows to that your mind is influencing matter every passing day. तो समझते नहीं है. So like we can say that कि मतलब mind matter से भी बड़ा है. Of course. And the truth is there is no distinction between mind and matter. What you see is matter is a manifestation of your mind itself. मैंने जैसे बताया आपको कि ये जो आप चीज देख रहे हो वो भी माइंड का ही पार्ट था एक टाइम में, तो वो मैनिफेस्टेशन ही हुआ, मतलब दूसरा फॉर्म हुआ उसी चीज का. सो द इन मोर स्पिरिचुअल सेंस देयर इज नो distinction between mind and matter or physical and non-physical. It is one and the same thing, just different forms. Yeah. अभी मैं आपको बताऊँ कि what is the difference between water vapor and water? It is just different between forms. There is the same H2O molecule which is in water. State. The same is in vapor. Yeah. In ether, but there are differences between its forms, right? So similarly, that there is no difference between mind and matter. The matter is an extension of the mind. Inside. So like it all brings us to, like subconscious mind, like so subconscious mind से सब manifest हुआ होगा ना. तो the thing is this, subconscious mind है ना, ये actually एक misnomer है, उसका proper explanation मेरे बताना चाहिए था. सबको जो भी ये स्टार्ट करते हैं उनको सब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है एक जगह से दूसरी जगह से, तो दे गेट मोर कंफ्यूज. द थिंग इज दिस कि ह्यूमन माइंड है ना, उसमें ये जो डिवीजन है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का, वो कैसे पता चला? वो पता ऐसे चला कि आप आपके पूरे दिन के बारे में सोचो कि आप कितनी चीजों के बारे में कॉन्शियसली सोचते हो कि अच्छा ये चीज मुझे करनी है, ये चीज करनी है. इफ यू नोट डाउन द थिंग्स व्हिच यू कॉन्शियसली थॉट ऑफ, वो लेट्स से 100 थिंग्स होगी उसके बारे में आपने सोचा पूरे दिन में. ऐसी 10,000 थिंग्स होगी पूरे दिन में, उसी दिन में, जो आपने बिना सोचे कर दी. जैसे आप आपके घर से यहाँ पे आए, आपको ड्राइविंग नहीं सीखना पड़ा, आप ऐसे बैठ के तुरंत आ गए. द ड्राइविंग इज अनकॉन्शियस. व्हाट हैपेंस इज, ब्रेन क्या करता है, उसने ये जो हमारा माइंड है उसने अपनी मैकेनिज्म कैसी बनाई है कि जो चीज आपको सीख रहे हो या पहली बार कर रहे हो उसको आप कॉन्शियसली करो, लेकिन जो हर बार कर रहे हो, जो रिपीटेडली कर रहे हो, उसको आप सबकॉन्शियस में बना लो. सबकॉन्शियस मींस यू आर नॉट 100% इन्वॉल्वड इन इट. वो अपने आप से एक्शन हो रही है, ऑटोपायलट मोड. आपने सोचा होगा कि अगर आपका रोज फिक्स घर से कॉलेज, फॉर एग्जांपल आप घर से कॉलेज जा रहे हो, तो घर से कॉलेज जाने का रास्ता आपका फिक्स है रोज का, आप रोज उसी रास्ते जा रहे हो, लेकिन एक दिन आपको आपकी मम्मी ने बोला कि यहाँ से कुछ लेकर आना. अगर आप ध्यान नहीं दोगे तब जो रास्ते जा रहे हो वही रास्ते चले जाओगे, राइट? आप भूल जाओगे कि मुझे यहाँ से टर्न लेना था. व्हाई डज इट हैपन? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ड्राइविंग कर रहा है उस टाइम. आप कॉन्शियसली ड्राइव नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही जा रहे हो उसमें. सो 90% ऑफ योर माइंड इज सबकॉन्शियस. 90% ऑफ द एक्टिविटीज दैट यू डू आर सबकॉन्शियस. आप सोचे देखो, सुबह उठ के आप सीधा ब्रश करते हो सीधा, तो ब्रश राइट हैंड से पकड़ते हो, क्यों लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ते? आपने बचपन से 10,000 बार राइट हैंड से उठाया है, तो अभी ब्रांड को यहाँ से उठाना है, पहले उठ के यही करना है, पहले उठ के यही करना है. पैंट्स में भी सोच के देखना कि आप जब पैंट्स पहनते हो तो राइट लेग पे डालोगे, लेफ्ट लेग. इफ यू ट्राई टू चेंज इट यू फंबल ऑल ओवर द प्लेस. हाँ, क्यों? क्योंकि सी देम यार, आप क्योंकि ये बारे में तो मैं आपको बताऊं तो आप सोच रहे हो इतनी सारी चीजें आप रोज करते हो जिसके बारे में बिल्कुल सोचते नहीं हो. द थिंग इज पीपल लिव 90% ऑफ देयर लाइफ अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस. दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. और होता क्या है कि हमको लगता है कि हम सोच रहे हैं, कि हम ध्यान से कर रहे हैं चीज, बट मोर ऑफन देन नॉट इट इज दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. हमको लगता है कि हम ये कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली हमने ये डिसीजन लिया है, बट इट इज मोर ऑफन देन नॉट पॉसिबल कि ये डिसीजन किसी और ने आपके माइंड में फिट कर दिया है और आप इसको ऐसे ही अनकॉन्शियसली फॉलो. The mass planted it in your mind Yes. and you just react on it. अब
Why does this happen? ये जो हमारा वाइब्रेशन जैसे मैं आपको बताया वो कंट्रोल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से. ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, हैबिट में है. It is continuous in the habit of doing the same thing again and again. तो उसी चीज से हमारी वाइब्रेशन डिफाइन होती है. मतलब इसी चीज ही कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना हो या किसी भी चीज को करना हो, देन मेक इट ऑन ऑटो पायलट. फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि मुझे वेट लूज करना है, राइट? सो यू सेड कि भाई मेरा इतना वेट है, आई वांट टू रीच दिस लेवल, राइट? नाउ हाउ डू यू ऑटो पायलट इट? सिर्फ आपको सोचने से या विजुअलाइजेशन से नहीं आएगा. यू हैव टू मेक इट इनटू अ सिस्टम. एक पैटर्न एक्सरसाइजिंग, डाइटिंग, एंड नॉट वंस और ट्वाइस. वंस और ट्वाइस करने से नहीं आएगा. जैसे साइमन साइनेक कहते थे कि आप एक दिन जिम में जाओ और फिर अपने आप को you won't see a difference. Not a single difference. The difference comes through automation, autopilot, over a long period of time. So that is why subconscious mind is important. कि आप जैसे ही किसी चीज को सिस्टम एम्प्लॉय करोगे, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उसके बारे में उसको एक्शन में लाने का ट्राई करेगा और ऑटोमेटिक आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओगे. So once you form patterns, Yeah, and pattern are not just physical. Pattern are mental as well. So mental patterns are called affirmations. तो affirmations क्या है कि हम अपने माइंड को कह रहे हैं कि भाई ये जो पॉजिटिव सेंटेंस दोहरा रहे हो, हम बार बार क्यों दोहरा रहे हैं कि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाए और ऑटोपायलट में हम ऐसा सोचना शुरू कर दें. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर डीलिंग विद सेल्फ कॉन्फिडेंस. हम आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप कहीं भी जाते हो तो आप शाय रहते हो, आप बोल नहीं पाते हो, इंट्रोवर्ट जैसा आपको फील होता है. दैट कैन बी इजीली ओवरकम बाय रिपीटिंग टू योरसेल्फ दैट आई एम कॉन्फिडेंट इन ऑल ओकेशंस. लेट्स से यू टेक दिस सेंटेंस एंड रिपीट टू योरसेल्फ ईच डे, every night, 5 times in the morning, 5 times in the evening. Do it for 90 days. then you will see some sort of boost in your ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा अच्छा मुझे तो कॉन्फिडेंट रहना है यहाँ पे, मैं तो अब तक शायद रहता था. See the limits, every limit is inside the mind. There are no physical limits. There are only mental limits. So there's one incident with me as well. Yeah. Same चीज पे. एक साल पहले की बात है. So one of my close friend, वो बहुत शाय बंदा था, इंट्रोवर्ट, एकदम इंट्रोवर्ट. वो किसी से भी बात ना करे. अगर मेरे साथ भी हो तो then if we are walking, वो नीचे देख के बातें करेगा वैसा. मेरे तरफ भी ना देखे. Seems like though he is my friend since मतलब बहुत टाइम से. So और उसको डेट करना था. So he asked me, how do I become confident? How do I talk enough? So मैंने उसको यही बताया कि like practice affirmations और उसके साथ साथ you go out, you meet people, you meet new people and all. और at this moment he is dating a lot of girls, like he has dated. Yeah. So that's what I see the difference in him. और आज वो पूरा अलग मतलब मॉडल टाइप बंदा बन गया है. So that's the difference. You see, आप जो भी सोचते हो कि लाइफ में कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं हो सकता, आप एक बार शांति से सोच के देखो कि ये लिमिट मेरी फिजिकल लिमिट है या मेंटल लिमिट है. 90%, 99% टाइम्स देयर इज अ मेंटल लिमिट. ये जो हमारी सारी लिमिट्स है ना सेल्फ इंपोज होती है. या तो हमने खुद की है या तो किसी हमारे घर के किसी और बंदे, जब हमारे पास हमारे कॉन्शियसनेस का चार्ज नहीं था तब हमारे माइंड में फिट कर दी. So that is why parenting and things also makes much of a difference, because जब तक बंदा 0 to 7 years का होता है. So it's all about like programming the mind. Yes, see human beings, there is in today's real life there is no difference between a human being and a computer. जो चीज हम कंप्यूटर में कर सकते हैं वही चीज सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स के साथ ही कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स में you can easily program babies to do whatever you want with them. Easily. होता क्या है कि 0 to 7 years में हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ होता. We are just the subconscious mind. The subconscious mind क्या है कि पूरा ओपन होता है. It is open to suggestions. अब जो डालोगे उसमें वो सारी की सारी चीज ऑब्जर्व करके इनपुट ले लेगा, सीधा इनपुट लेगा. देयर इज नो फिल्टर. तो वो कैसे ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये अच्छा है ये बुरा है. उसके लिए जो सब है वो सब इंफॉर्मेशन है. तो इट कैप्चर्स इट. अगर ये ऐसा भी किस्से है कि जिसमें 3 साल का बच्चा 4 लैंग्वेजेस बोलता हो. कैसे? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरा ओपन है. अगर उनको 4 लैंग्वेज सिखाओगे 4 सीख जाएगा, 5 सिखाओगे तो 5 सीख जाएगा. दैट इज हाउ द माइंड इज वाइड ओपन until 0 to 7 years. So that is an age where human beings can be programmed to greater impacts in the world, to become great leaders and all. That is why parenting is very important. Parenting में parents, क्योंकि 0 to 7 में parents के पास ही चार्ज होता है अपने babies का. तो they can, और जो भी वो लोग कैप्चर करते हैं वही 2-5 लोग जो उनके सराउंडिंग में आजू-बाजू में है उनसे ही कैप्चर करते हैं. So the stories that you tell yourself and the stories that others tell you are very important for your life. वही stories define करती है कि आप अपनी लाइफ कैसे जीते. रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी आपने. So it's all about feeding what you feed to your mind, right? Yes. जैसे हम बॉडी को फीड करते हैं वैसे like people say जो great
लीडर्स है वो बोलते हैं कि लाइक व्हाट यू फीड योर माइंड इज व्हाट यू गेट, लाइक आउटपुट भी वैसे ही निकलता है। हाँ, तो इसमें जो सबसे बेस्ट कोट है ना, जेम्स एलन की एक बुक है एज अ मैन थिंकिंग। ठीक है, सो यू शुड डेफिनेटली रीड दैट बुक। सिर्फ 21 पेजेस की बुक है, शॉर्ट एंड स्वीट बुक, आप एक ही दिन में पूरी कर पाओगे। और वो बुक में जो विजडम है ना, वो मैंने किसी बुक में नहीं देखी। मतलब जिसको कहते हैं हम गागर में सागर, कि छोटी सी बुक में उन्होंने इतना विजडम भर के रखा है उसमें he says that man's mind can be linked to a garden. The thoughts can either be intelligently cultivated or allowed to run wild. आप किसी गार्डन को खुला छोड़ दो, उसमें कुछ गार्डनिंग ना करो, कुछ ना करो, कैसा बन जाएगा? Within just a moment of months, सब weeds आ जाएगी, सब जंगली बन जाएगा, सब जंगली पौधे, सब जंगली flowers. और like no one will love to go there. Yeah, और वो it is not pleasing to anybody. Yeah. The same garden, if you intelligently cultivate it, कि मैं अपनी पसंद के पौधे लगाऊंगा, पसंद के फल सब्जियां लगाऊंगा, पसंद की उसका ट्रिमिंग करूंगा, that garden is pleasing to everybody. Yeah. You also go to only that garden which are maintained, right? Maintained, yeah. जंगल में कोई नहीं जाता Which are pleasing to see. Right? Yes, so that is the main difference between the mind. So mind में जो तुम सोच के देखो कि तुम्हारा माइंड गार्डन होगा, तुम जाना चाहोगे वहाँ पे? नहीं. Just think about it. So कैसा होगा उस पे डिपेंड करता है। Yes, so that is you have to analyze yourself कि अगर मेरा माइंड गार्डन जैसा होगा तो मैं अपने आप के माइंड के गार्डन में जाना चाहूंगा। मेरे थॉट्स कैसे हैं, मेरी जो माइंडसेट है वो कैसा है। The more intelligent you cultivate that, the more beneficial it is for you as well as your people around you. So like it's all about introspecting it. Yes. और जितना ज्यादा लोग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे उससे उनके लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स है like half of them will fade away, I guess, because majority problems what I see is either they are linked with money or they are linked with relationships. So relationships का तो हट ही जाएगा, मतलब if you build yourself up first, then what you attract will be somewhere linked with your energy, your vibrations. क्योंकि ये जब मैं किसी के साथ बहुत डीप बातें करता हूँ तो I talk to them like that. Yes, of course. Like समझो कि लाइफ के स्टेजेस है 1 to 100, ठीक है, समझ लो मैं लेवल 60 पे हूँ अभी, सो आई विल मीट पीपल हु आर सिमिलर टू दैट लेवल 60, 61, 59 एंड ऑल, राइट? और जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा मुझे भी उसी लेवल के लोग मिलते जाएंगे। Your tribe decides your vibe. Yeah. तो see that it's a very true। और ये जो सारे सेंटेंस है ना, इसको हम अगर ये बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रास्तों से कहा है, अलग अलग रीत से कहा है। उसमें क्या है कि जैसा that is why you have to choose your friends carefully। जो फ्रेंड्स आपको अपलिफ्ट करते हो, जो फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते हो, जो फ्रेंड्स आपको हेल्प करते हो अपने आप को बेटर बनाने में, उन फ्रेंड्स के साथ रहोगे ना तो they will push you to become better version of yourself। Yeah. So Warren Buffett says that hang out with 5 successful people and you'll be the 6th. Yeah, so that's absolutely true। और that I experienced it myself। मैं जब अपनी कॉलेज से निकला तो then I lost contact with all my friends, and that was consciously। I lost them, contact with them consciously, because I saw that they were going on a different path, and they were, I know that they were into jobs and they want to, build their careers, but I wanted to become an entrepreneur। So I said that if I hang around with them, I will also start thinking like that। Yeah, the mindset will shift to so then okay, how will I get more high paying job? How will I get into this company, that company? How will I improve my CV and all that? So I was thinking, no, I have to hang out with entrepreneurs to think like an entrepreneur। So I consciously made myself a choice to go in a small company where I can, hang out with the founder. I can hang out. So I can see the entire process. People with entrepreneurial mindset. It makes much of a difference. If you think that you can, stay with your same friends and think extraordinarily, I don't think that's going to possible, because there are two things which are very important in any human being's mindset. One is inheritance and one is environment. Inheritance you don't have any control over. What you are born into, how is your mindset of your mother, father, you can't control relatives. You cannot control that inheritance part, but you can control that environment part. Environment is in your control. So mindset is influenced by only two things: inheritance and environment. So this is one thing which you should burn something that okay, my environment is impacting my mindset. How am I going to choose it to make it more suitable to my goals and my methods? That's very insightful now. Yeah. So similar to what you told, जो entrepreneurial mindset वाले लोगों से उनके साथ hang out करना वो चीज़ है। So even I'm at that stage in my life कि मतलब सब डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है, लाइक लोग जा रहे हैं जॉब में, कुछ फ्रीलांस कर रहे हैं, कुछ खुद का स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वैसी चीजें।
and in that case it's like very difficult for me to funnelize myself. Yeah. और पूरा ऐसे चैनलाइज करूँ कि मैं जो मेरा विजन है उसके टुवर्ड्स लाइक आई कैन ग्रो टू दैट, Yeah. I can drag myself towards those goals. So it's very confusing. और दूसरी साइड पे उतना ही exciting भी है. Like you meet a lot of new people. Right. And once you understand their behavioral patterns and their psychology, you get to decide कि मतलब हाँ whether I can hang out with this person or not. Yeah. So it is very important. और ये ना ये moment life में होता है कि जो decide करता है कि आप कहाँ जाओगे. The thing is कि जहाँ हमारे ह्यूमन बींग्स है ना, वो जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमेशा ऐसे प्रोग्राम किए गए हैं, यू शुड गो इन हर्ड्स. पहले के जमाने में क्या था कि वी यूज्ड टू स्टे इन केव्स में रहते थे, हंटर गैदरर्स थे. तो क्या है, जितने साथ रहोगे ना उतना इजी रहेगा, क्योंकि कोई अटैक हुआ या कुछ भी हुआ तो सब साथ में उससे डील कर सकते हैं. तो ह्यूमन बींग में ये प्रोग्रामिंग हुई कि जो बंदा साथ रहेगा ना वो आबाद रहेगा, जो अकेला जाएगा ना वो पहले मर जाएगा. So this herd mentality is programmed evolutionary inside human beings. तो human beings में क्या है कि requirement है कि हमको herd ही ढूंढना है, group ढूंढना है. हाँ. सब लोग कहाँ जा रहे हैं वहाँ जाओ, ये safe है. Engineering and medical. हाँ, so so this happens because the main aspect of this is the brain has not evolved as fast as the body has. Body और हमारा जो society है वो बहुत जल्दी evolve हो गया. हम लोग hunter gatherers से ये civilized society पे nation states, army वाले सब, ये जो हमारा आज का सोसाइटी है वो बहुत जल्दी इवॉल्व हो गया कंपेयर टू द फिजिकल इवोल्यूशन. फिजिकली हमारा ब्रेन अभी भी वो हंटर गैदर वाला ही है. इसीलिए हमको बार-बार ये एंजाइटी, एंकर जैसे इमोशंस तुरंत आ जाते हैं. So we have inherited all those characteristics since those times. Yes. There is a part of the brain called the reptile brain. Okay. जो हमारा ब्रेन का इनर कोर होता है reptile brain. It is called reptile brain because it is still has the characteristics of reptilian creatures. जो हमारे वो थे, पूर्वज थे. और उसमें क्या है कि that decides the emotional state of the human being. तो वो क्या है कि सब आप बैठे हो यहाँ पे, और अगर आपका बॉस पसंद नहीं है जॉब में, मैं आपको बॉस की 2-3 बातें करूँ तो आपके मन में गुस्सा आ जाएगा. बॉस यहाँ पे नहीं है, फिजिकल थ्रेट नहीं है, लेकिन जैसे उसका थॉट ट्रिगर हुआ तो ट्रिगर थॉट हुआ तो वैसे ही वो सोचेगा कि वो इमोशन जनरेट कर देगा आपके बॉडी के अंदर. सो दैट इज वाई. और ये जो मेंटालिटी है हमारे ब्रेन की इमोशनरी तरीकों से आई हुई, उसी की वजह से ना हम हर्ड मेंटालिटी को छोड़ नहीं पाते, हम ग्रुप्स को नहीं छोड़ पाते, हमारे फ्रेंड्स को छोड़ नहीं पाते. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे अलोन, वॉक अलोन. बट द ट्रू थिंग इज कि इफ यू वांट टू रियली प्रोसीड इन योर लाइफ, then you should be willing to let go of your friends, let go of your a lot of things. Even if your family members, it is very difficult to say this in current context, but it is true that some of your family members might be the anchors that are holding you Might in be certain, affecting your mindset, Of course. hindering your mindset. that might be keeping you where you are, not and helping you where you want to go. Yeah. So you like, should have the guts to go alone. Like recently I saw one reel और उसमें भी ऐसा कुछ था कि like there was one guy और वो बोलता है कि समझ लो कि आप यहाँ पे हो, हाँ. और जो आपके फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे. फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स है वो यहाँ पे है. सो ये गैप तो कवर अप होना ही होगा. तो आइदर दे विल ड्रैग यू डाउन और दे मूव अप. और अगर वो मूव अप नहीं हो रहे और स्टिल आप कांटेक्ट में हो तो आपको नीचे खींच लेंगे. True. And that was amazing, like mind blowing. मतलब बहुत बड़ी बात थी वो. Yes, so that is true, and you'll realize it yourself only that okay, the people you stay around with changes your mindset. लेकिन वो जब हम कॉन्शियसली सोचते हैं तभी होता है, पता चल पाता है. हाँ. अदरवाइज वो चलता रहता है. So that is why I'm saying 90% of your life goes away subconsciously unless you are aware कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है. ये मुझे नहीं पता था. ये जब मैंने पढ़ना शुरू किया, ये सारी चीज हुई, तब मुझे पता चला अच्छा मैं जिस बारे में सोच रहा हूँ ये मैं अपने आप ही ऐसे ही जी रहा हूँ. आई एम पासिंग ऑन माई डेज विदाउट थिंकिंग, विदाउट एक्सप्लोरिंग कि हाँ भाई मैं क्यों हूँ यहाँ पे, क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है लाइफ के अंदर. दोज काइंड ऑफ थॉट्स नेवर एंटर्ड माई माइंड. देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा मैं कुछ नहीं करूंगा तो जैसे सब जा रहे वैसे ही मैं कहीं पे फिट हो जाऊंगा, कोई रास्ता पकड़ लूंगा. The ordinary life. Right. So I'm not judging that it is ordinary or mine is extraordinary. The only difference is mine the one that I chose or is mine the one that others chose. मेरी लाइफ ये है जो मैंने खुद चूज की है, या फिर ऐसी है कि जो मेरा बाजू वाला आईलेट्स दे के कनाडा चला गया, ये वाला आईलेट्स दे के कनाडा चला गया तो मैं भी चला जाऊंगा. तो इसलिए मैं बाजू वाला इसलिए मैं जा रहा हूँ कि मुझे खुद क्या कुछ करना है, कि मुझे पता है कि वहां जाके मुझे क्या करना है या फिर मुझे अपने लाइफ के साथ क्या करना है. So that is the main difference between living consciously and not living. So there is one quote like
people follow the masses, but often the masses are only asses. Yeah, so that's an easy one. सही बात है, but so that happens. So if you're not conscious about it, then it is entirely possible that you are always following the herd. Yeah. So there's poem in the Rich Dad Poor Dad, the road not. Yeah. So that poem is very famous. Yeah. And, Robert Frost. Right? Robert Frost. Yeah. So he says that two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So that is something which is very close to my heart, that poem, and that shows that okay, once you are taking the road less traveled by, that is making all the difference. But it is scary. It is uncomfortable. Yeah, it is not risky. Yeah, Risky it is the risky. most. It is uncomfortable. It is lonely. Once you are ready to face all those things, then only you can make all the difference that is happening between common people and what you are trying to achieve. So like coming back to our manifestation part. So when I was a kid, we were having a gathering in our society, and one guy he used to stay in US, and so he told us his own story. Yeah. And he was like, कि once I just had $10 in my pocket, और he wanted to earn more. So उसने क्या किया कि $100 का नोट लगा दिया. Sooner he knew, मतलब उसको पता चल रहा है कि उसके पास $100 है. And so like I believe ये law of attraction manifestation सारे aspects पे काम कर रहा है, not just your goals and all, but finances के साथ भी Of course. linked है. And see, लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ मैजिकल चीज हो रही है, यूनिवर्स क्या ये रहा है, ये समझने के लिए अच्छा है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट साइंटिफिकली. फॉर एग्जांपल आप सोच के देखो, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे बैठ के आपको कहीं जाना है, अब जब तक मैं आपको बोलूंगा नहीं कि कहाँ जाना है, आप कहाँ जाओगे? Right. What is the direction that you are going to? Yeah. What law of attraction or what goal setting does is it gives you a destination that this is where you want to go. होता क्या है मैं बताता हूँ आपको. लोग सोचते हैं इट इज गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट यूनिवर्स ब्रिंग्स इट टू अस. देयर इज नो फिजिकल थिंग इज यूनिवर्स, और यूनिवर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि सब एक को देख के हर चीज को देने जाए. द थिंग इज व्हाट हैपेंस, हमारा माइंड है ना चैनलाइज होता है. Okay. आवर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट हैज टू बी चैनलाइज्ड. उसको एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए. होता क्या है कि हम जब गोल्स लिखते हैं और उसको पेस्ट करते हैं, तो हमारा माइंड है ना सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उस चीज को पाने के लिए अपने आप रास्ते खोजने लगता है. So law of attraction is not always the universe giving something to you as a gift or a thing. It is your own brain, your own mind shifting itself to go in that direction. Okay. So what happens is once you give, let's say he pasted that dollar, now his mind will think, अच्छा कैसे कमा सकते हैं इतने, अच्छा क्या रास्ते हो सकते हैं कमाने के. अच्छा मुझे मेरा गोल है, फाइनेंशियल गोल, कि इतने रुपए कमाने हैं, इतने डॉलर्स कमाने हैं. सो नाउ माई माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग, अच्छा इतने अमाउंट तक रीच करना है, क्या करना पड़ेगा, कितने लोगों को सर्व करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा. अब तक क्या है कि मैंने जब तक मेरा डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगा. कभी यहाँ पे जाएगी गाड़ी, कभी वहाँ पे जाएगी. जब तक मेरा डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है तब तक आई कैन नॉट गो एनीवेयर. Once the destination fixed, then I can explore roads to go there. क्या ये रोड जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये रोड जा रहा है. It's like Know Your Why by Simon. Yes, it is. Knowing your why is very important. It all boils down to this, that why it is important to manifest things or set goals and try to go after them, because goal setting gives you direction. Unless you have a clearly defined goals, you will not go in any direction. You will go wherever the heart takes you. Once you have a clearly defined goal, then you will start moving towards it, and it will, there are two things. You will push yourself, and the goal will pull you as well. Oh. So there is two forces taking place at the same time. Yeah, but is it like कि मतलब समझ लो मैंने कोई गोल बनाया है और I'm trying to achieve it. ठीक है, मैं वो रास्ते पे चल पड़ा, लेकिन उस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस. सो एट द फर्स्ट मोमेंट इट्स वेरी चैलेंजिंग, आई बिलीव. ऑफ कोर्स. और वही जो ट्रैक्शन है स्टार्टिंग का, वो अगर पार कर लिया देन इट बिकम्स वेरी इजी. लाइक फ्रीक्वेंसी जो है वो बन जाती है. और ये ना बहुत नेचुरल चीज है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है ना, दैट मींस योर माइंड इज नॉट शिफ्टिंग. इसमें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं पैराडाइम शिफ्ट. मतलब आज तक सोचो कि आज तक आपका माइंड एक तरह से सोचने के लिए, एक तरह से लोगों के साथ मिलने के लिए ट्रेन हुआ है. नाउ सडनली यू आर मेकिंग इट गोस इन अदर डायरेक्शन. तो वो रेजिस्ट करेगा माइंड आपको, नहीं ये क्या करना है, ये तो सब फालतू चीज है, कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन से. 5 बार करके देखा, कुछ हुआ नहीं. 1-2 बार ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ. Mind gives up. Why it gives up? Because you see, it will try everything to stop you itself from shifting. It took me a long time. पहला मैं आपकी बात करूँ, मैं 10th में जो वो हो गया, वो that was a fluke. I believe it was a fluke for the first time. For me to consciously do it, it took me a lot of effort.
माइंडसेट इतना शिफ्ट, इतना रेजिस्टेंस आया कि बॉडी सोचता है कि ये सब क्या है यार, ये तो ठीक है तुम साइंस पढ़ रहे हो, ये सब में मान रहे हो. It did not make sense to me for a lot of things. और फिजिकली भी बोल रहा था कि क्या करने की जरूरत है, क्या यार एक वो ही सजेस्टेड दैट यू शुड राइट योर गोल एवरी डे. So you were writing? या व्हाइल राइटिंग आई वाज थिंकिंग क्या यार ये थोड़ी यार ये क्या है सब, ये एक नहीं So, एक चीज का लिखने का. There are two voices inside the brain. One is thinking that I want to go in this direction. Other is saying ये सब क्या फालतू चीज है, एक चीज क्या 5 बार लिखने की. So वो क्या वो रेजिस्ट करता है फिर? Yes, Double mindset. double mindset will fight you unless, and you see whichever side you power will win. अच्छा. अगर तुम उस रेजिस्टेंस वाली साइड पे चले जाओगे कि हाँ ये सब फालतू रख दो इसको साइड पे, तो वो जीत जाएगी. अगर तुम उस बाजू वाली साइड पे रहोगे नहीं कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट स्टॉप अंटिल आई एम डन, देन इट विल विन. So similarly, like you have a dark side and a positive side in your body, and Of like course. whichever you incline towards, your aura and your life shifts Yeah. toward that. ऑफ कोर्स, श्योर थिंग. दो हमारे ह्यूमन बींग्स में ड्यूअल नेचर है ना, देयर इज अ लॉ ऑफ पोलैरिटी एज वेल. ह्यूमन बींग्स और पूरे वर्ल्ड में दोनों पोलैरिटीज हर जगह पे होती. अच्छा. किसी भी चीज में देख लो आप, डार्क लाइट, यिन yang, इडा पिंगला, हमारे राइट लेफ्ट, हमारे पूरा वर्ल्ड है ना वो डिवाइडेड है पोलैरिटीज में. बट द पोलैरिटीज आर पार्ट ऑफ द वन थिंग. फॉर एग्जांपल सोच के देखो, फॉर एग्जांपल ये पिलो है तो ये सपोज इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है. Yeah. फॉर एग्जांपल मैं पिलो को कट करना स्टार्ट करूं, मैं राइट साइड को कट कर रहा हूँ. हाँ. जब तक मैं आखिरी राइट साइड को कट करूंगा मेरी लेफ्ट साइड भी चली जाएगी. सोच के देखो क्या Right, बोला right, मैंने. right. हाँ, जब तक समझ मेरे लास्ट ये राइट है, चलो इसका राइट ये है, इसको काटा राइट, काटा राइट काट, जब तक मैं लास्ट राइट स्लाइस को कट करूंगा हाँ. मेरी लेफ्ट साइड भी चली जाएगी. चली जाएगी. देयर कैन नॉट बी वन विदाउट द अदर. तो ये नियम है इसका कि अगर आप किसी चीज को अच्छी देख रहे हो, हाँ. हाउ कैन यू डिफाइन दैट दिस इज गुड. मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम अच्छे बंदे हो, क्योंकि मैंने बुरे बंदे देखे हैं. हाँ. हाउ कैन आई डिफाइन दैट दिस इज गुड, बिकॉज आई हैव सीन बैड. Bad. एवरीथिंग इज कॉन्ट्रास्ट. मैं तभी किसी को चीज को अच्छा या बुरा कह सकता हूँ जब मैंने उसकी अपोजिट चीज देखी हो, अपोजिट चीज सुनी हो. सो polarities are a part and parcel of this world. You cannot remove polarities. लोग सोचते हैं कि बुराई खत्म हो जाए, अधर्म का नाश हो. अधर्म का नाश होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि धर्म क्या है. सही. अधर्म है तो पता चलेगा कि अच्छा ये अधर्म है, ये धर्म है. सिर्फ अगर एक टाइप का बिहेवियर होगा तो पता कैसे चलेगा कि ये अधर्म है, धर्म है. हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. डिस्टिंग्विशन कम्स फ्रॉम कॉन्ट्रास्ट. अगर चोर लुटेरे हैं और अच्छे इंसान है तो मैं बता सकते हो हाँ भाई ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं. सही. अगर बुरे, ये जो अच्छा बुरे का कंसेप्ट है, दैट हैपेंस ड्यू टू पोलैरिटीज, and both are the manifestation of the same thing. Oh. So that is actually a very different spiritual topic, but this is the reality that polarities will always be there. It will be inside your mind, it will be inside your body, it will be inside every circumstances. हर चीज में होगी polarities. आप polarity से भाग नहीं सकते. और polarities है ना तब तक ही हम हमारे में सेंस ऑफ जजमेंट रहता है कि हाँ भाई अच्छा ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है. ये सेंस ऑफ जजमेंट है ना, ये तब तक ही है जब तक पोलैरिटीज है. अगर पोलैरिटीज नहीं है तो देन देयर इज नो सेंस ऑफ जजमेंट. सो दैट इज द थिंग दैट हाँ हमारे माइंड में भी है कि दोनों चीजें बोलती है. व्हाटएवर यू पावर गेट्स ग्रोन. It is actually very deep. या ऑफ कोर्स. So now we come up to like actually कैसे मैनिफेस्ट करें. Like समझ लो कि कोई लड़की है, उसे अपना क्रश मैनिफेस्ट करना है, क्या वो कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है. द ओनली थिंग इज दैट कि अगर किसी बंदे को देख के किया है कि यही बंदा चाहिए तो देन इट इज डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो दैट यू. आई वुड सजेस्ट अच्छा रास्ता इसमें ये है कि यू लिस्ट डाउन द क्वालिटीज. यू लिस्ट डाउन द क्वालिटीज. मैं ये एग्जांपल मैंने जॉन एसआरएफ नाम के एक कोच थे, उनका भी इसमें था द सीक्रेट में. उन्होंने लिखा था कि यू लिस्ट डाउन द क्वालिटीज. ओके आई वांट माय अदर पार्टनर टू हैव दिस क्वालिटीज. He should be this one, this one, this one. Write down the qualities. You know, vividly describe it with words that how she should be physically, character-wise, mentally, emotionally, right? Yeah. So try to make it. Try to bring that. That picture with words as vivid as possible. Okay. And then try to visualize that. Okay, you are getting this kind of partner in life. And if you focus on that, those words only, more often than you will get the partner with all those qualities. So similar to what you told, ये मैंने एक बुक पढ़ी थी, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू लिव इट.
अच्छा उसमें भी यही सारे कंसेप्ट है, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक सेक्शन को, एक एस्पेक्ट्स जो लाइफ में वो अफेक्ट करता है, उसको सब उन लोगों ने वो कवर किया है. लाइक इट कुड बी फाइनेंस, इट Yeah. कुड बी ये पार्टनर को ढूंढना हो गया, Yes. करियर ओरिएंटेड गोल्स हो गए, हेल्थ हो गई. सो लाइक हेल्थ में भी ऐसा था कि लाइक एक बंदा ही वाज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस, हाँ और कैसे जो ऑथर है उन्होंने उनको ये एफर्म करना सिखाया, एंड ही मैनिफेस्टेड एवरीथिंग, और अभी उसके बाद वो बहुत अच्छी जिंदगी जी गए. यस सी इट इज एवरीथिंग इज पॉसिबल. मैंने तो इतनी सारी स्टोरीज सुनी, इतने सारे केस स्टडीज सुने हैं कि राइट नाउ इन माय माइंड आई नेवर अज्यूम दैट दिस इज नॉट पॉसिबल. अच्छा. ये माइंड में जो इम्पॉसिबल का कंसेप्ट है ना, वो मेरे माइंड में से बिल्कुल चला गया है. because of the anecdotes that I've heard and seen in my life And as what well. you have experienced as Yes, कि हम किसी भी चीज पे लिमिट नहीं डाल सकते, ये नहीं हो पाएगा, कुछ भी हो सकता है. There is no certainty to anything, कुछ भी हो सकता है. There is no certainty कि ये नहीं ही होगा, ऐसी कोई चीज नहीं है लाइफ में. तो that is something that which is and especially concerned to human beings. Human beings में हम, मैंने जैसे को बताया पहले human potential के बारे में, you cannot put a cap on the human potential. Human potential क्या कर सकता है, human being क्या अचीव कर सकता है अपने लाइफ में, there is no limit to it. And that is why कोई भी illness में से आना हो, कोई finances मिलना हो, relationships का मामला हो, everything can be achieved, everything can be manifested using proper direction and proper perseverance. Perseverance is the main thing here. Yeah. People give up on the side of the first obstacle. लोग है ना पहले ऑब्स्टेकल पे ही छोड़ देते हैं रास्ता. सो वही मेरी बात थी कि जब वो इनिशियल रेजिस्टेंस आता है, जो ट्रैक्शन आता है, उसमें ही आधे से ज्यादा लोग तो निकल जाते हैं. Yes, आधे से नहीं, 80% 90% people leave that because the thing is this. उनको लगता है कि रास्ता एकदम इजी होने वाला है, स्मूथ होने वाला है, बट इट इज नॉट ऑलवेज दैट. और हमेशा है ना रेजिस्टेंस तो आएगा ही, और अगर आपके पास में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है ना, तो आपको समझ आएगा आप गलत पास पे हो. आप द कॉन्शियस थॉट यू हैव इज कि कम व्हाट में कुछ भी आ जाए. नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रेंच किंग था, बहुत फेमस था, जिसने बहुत सारे युद्ध किए नेपोलियन, और उसका एक कोट है, आई सी ओनली द ऑब्जेक्टिव, द ऑब्स्टेकल्स मस्ट गिव देयर वे. कि मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखूंगा, जो ऑब्स्टेकल्स है मेरे रास्ते में वो अपने आप रास्ता छोड़ देंगे मेरा. सो आई रोट दैट माई सेल्फ व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग. इसके ऊपर से हमें पता लगता है कि उसकी विल कितनी स्ट्रांग होगी. ही सेड मुझे क्या है भाई, इस प्रदेश को जीतना है, इस पे क्या अड़चन आएगी, ये नहीं है मेरा, नहीं सोचनी. नो नथिंग डूइंग. आई सी ओनली द ऑब्जेक्टिव, द ऑब्स्टेकल्स मस्ट गिव देयर वे. अगर इतना माइंड स्ट्रांग है कि मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देख रहा हूँ कि मेरा ये, मुझे ये चीज अचीव करनी है, आई डोंट वांट टू सी द ऑब्स्टेकल्स. ऑब्स्टेकल्स अपने आप हटते जाएंगे. देन दैट पर्सन और दैट इंडिविजुअल कैन इजीली ट्रैवल ऑन इनटू लाइफ. सो लाइक इससे हमें पता लगता है कि ना सिर्फ एफर्म करने से, लेकिन उसके साथ कॉन्शियस एक्शंस भी लेने पड़ेंगे. ऑफ कोर्स. सिर्फ मैं लिखता रहूं कि आई विल बी हैविंग $5 billion in 2022, ऐसा मैं 10 लाख बार भी लिख दूं, लेकिन मैं कुछ एक्शन ना लूं, इंप्लीमेंट ना करूं, तब तक नहीं होगा. द थिंग इज मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा. और वो उसमें पता है क्या चीज है कि आपको सिर्फ लिखना नहीं है, लिख के बाद आपको यू टू थिंक अबाउट इट कि हाउ कैन दिस बी डन, हाउ कैन दिस बी डन, हाउ कैन दिस बी डन. जैसे आई सेड, फैंटेसी, थियरी, फैक्ट. फैंटेसी आपने कर दी, इतने चाहिए, यहाँ तक इतने टाइम के अंदर इतने डॉलर्स चाहिए, फाइन. थियरी, हाउ कैन आई गेट इट डन, कैसे होगा, क्या करना है चाहिए. लुक फॉर द वेज. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिक्स करो कोई चीज को, स्टार्ट लुकिंग फॉर इट. अगर आपके ब्रेन को ट्रेन करोगे कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, तो अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे. somehow you will just Click. click that. कि हाँ ये इससे हो सकता है, इससे हो सकता है. और मैं जैसे आई सेड, इट इज पुश एंड पुल. सिर्फ आप सोचो कि पुल ही आएगा तब तक मैं बैठे रहूंगा, तो नहीं होगा. पुश एंड पुल दोनों होना चाहिए. आपको भी पुश करना है अपने आप को, गोल भी आपको आपकी तरफ पुल करेगा. सो पुश एंड पुल दोनों होना चाहिए, तभी जाके होगा. So Secret, what we talked about the book Secret by Rhonda Byrne. So उसमें से मैंने 3 की principles निकाले. First was ask. Like write what you specifically want in the present tense. Present tense में लिख दो उसको. And after that believe. Like have unwavering faith in what you want. And then you will receive that thing. और receive में भी क्या होता है कि live as if you have got it. Like जो pleasure आपको मिलेगा वो feel करो भी. And that is style like law of vibration. आप सोच के देखो, for example आपने लिखा कि मुझे $5 million चाहिए. सोच के देखो $5 million जब आपके पास हो गए तब आपको कैसा फील होगा. Try to bring that vibration right now. Right. As I said, like attracts like. अगर आपकी वाइब्रेशन पहले वैसी होगी ना, तब जाके वो चीज आपकी वो easy हो जाएगा, आना easy हो जाएगा. You should feel grateful, you should feel
that kind of state without it actually happening. Only then it can draw itself to it. So this is one key principle that people miss in manifestation process. You should, the most important aspect of it is emotion. जितना आप इमोशनल इन्वॉल्व होगे ना आपके गोल के अंदर उतना जल्दी आएगा आपके पास. So like सिर्फ कॉन्शियस नहीं सोचते लोग 80% लाने 90% लाने, दैट इज जस्ट अ कॉन्शियस थॉट. उसमें आपका इमोशन इन्वॉल्व नहीं है इतना. गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आपको इमोशनली एक्टिवेट करें कि हाँ कि हाँ ये चीज आई तो मजा आएगा. As it says that energy in motion is emotion. Yes. So जितना एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड होंगे तो वो इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा. जितना आप इमोशनल इन्वॉल्व होगे आपके गोल के अंदर उतना आप जल्दी उसको अचीव कर पाएंगे. बिकॉज इमोशन एज यू सेड एनर्जी इन मोशन, उतनी जल्दी आपका बॉडी आपका माइंड है ना उस डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएगा. एंड दैट आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ एज वेल, दैट इफ योर गोल इज वर्दी इनफ, आपको उसमें ऐसा इमोशन अटैच होना चाहिए उसके साथ कि भाई ये अचीव करने पर मुझे ये फीलिंग है, ये अचीव होना, दैट विल ड्रॉ यू. एंड दैट विल ड्रॉ यू इन डार्क टाइम्स एज वेल. जब आपको रास्ते में रोड ब्लॉक्स आएंगे, रास्ते में मोटिवेट यू कि लाइक मतलब कीप गोइंग. That emotion draws you towards your goal. So that is very important. And I've known you since my birth, so I know you are a big fan of Think and Grow Rich book. Yes. और मुझे ये भी पता है कि आपने वो बुक इतनी बार पढ़ी है कि अब वो बुक आपको पूरी याद होगी. Yes. So the story is this. That's also I learned from Bob Proctor. When he was working and he was working as a fireman. Fireman मतलब जो आपको पूरे दिन आपको बैठे रहना है. अगर कोई कॉल आता है कि भाई यहाँ पे फायर आई है, तब वो ट्रक पे जाके बैठ के वहाँ पे जाना है, बुझा के वापस आ जाना है. पूरे दिन बैठे रहना है, टीवी पे मूवीज देखनी है, ये करनी है और उसके आपको पैसे मिलते हैं. So he was having a very chilled out job in Toronto in fire service. But he had debt. उसके पास डेट था, उसका बहुत टाइम था. उसकी सैलरी $4,000 थी ईयरली उस टाइम पे 1960s में. Okay. उसके पास डेट $6,000 का था. मतलब पूरे 1.5 साल तक वो कुछ भी ना खाए पिए, एक भी डॉलर यूज ना करे और सारे कर्जा. तब 1.5 साल के बाद कर्जा सिर्फ उतरेगा, ब्रेक इवन, और ये ब्याज का तो बात ही नहीं, उसका तो बुरा हालत. इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं. तो ही वाज लाइक इन अ वेरी ग्रेव सिचुएशन. तब उसको किसी ने ये बुक दी, थिंक एंड ग्रो रिच. थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी बुक है, आई शुड रिकमेंड एवरीबडी टू read it. It is a book that you should read in your lifetime. If you are not reading it, there is no difference between you and somebody who cannot read. Yeah, I can remember आपने मुझे पहली कॉपी दी थी. अगर yes, and there is a reason behind it. वो बुक जिस तरह से लिखी गई है ना, वो ऐसे ही नहीं कि घर पे बैठे किसी ने लिख दी है. That guy Napoleon Hill went to the 500 most successful people in the world. Thomas Alva Edison, Henry Ford, Woodrow Wilson, then Wrigley, then Charles Schwab. सारे लोगों के पास वो गया, उस सेंचुरी के सब सक्सेसफुल लोगों के पास. उनके पास से उन्होंने जाना कि क्या आपके प्रिंसिपल्स थे और उसको कंपाइल करके बुक बनाई है. उसके घर पे बैठ के उसके सब थॉट प्रोसेस वाली बुक नहीं है. सो दैट बुक इज द क्रक्स ऑफ द सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ 500 ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड. और उसी प्रिंसिपल्स को उसने आउटलाइन किया है. ये बुक जब बॉब प्रॉक्टर को मिली तो उन्होंने उस दिन से वो जो बुक थी उसको अपने मरते दम तक संभाल के रखा और हर रोज पढ़. दैट बुक and it had so much depth in it because there are certain chapters in it which were talking about perseverance and all that. उसमें इतनी डेप्थ है वो बुक के अंदर. अब जितनी बार पढ़ोगे ना आपको नया नया पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, कि इसमें इतनी डेप्थ है बुक के. जितनी बार पढ़ोगे आपको पता चलेगा अच्छा ये भी है, और उसको आप रेट कर पाओगे अपनी लाइफ में. हाँ 3 feet from gold, कि वो बंदा जिसने माइनिंग स्टॉप किया, जहाँ पे वो माइनिंग कर रहा था गोल्ड ढूंढने के लिए, जहाँ पे उसने माइनिंग स्टॉप किया और वो सारी सामान जिसको बेच दी, वो बंगाल वाले ने वहीं पे माइनिंग किया और उसको गोल्ड मिल गया. और जहां इसने स्टॉप किया था और जहां से गोल्ड मिला उसके बीच में सिर्फ 3 फीट का डिस्टेंस था. यानी 3 फीट की जगह पे he missed out from gold. He gave up. So that is a lesson कि आप जहां गिव अप कर रहे हो सकता है आप सिर्फ 3 feet from gold हो. You don't know what is your how far you are from gold. So that story and that is a real story. तो आप सोच सकते हो कि भाई इतनी रियल स्टोरी, इतनी लोगों के पास this gives an inspiration कि भाई हमको कभी भी इसको गिव अप नहीं करना. And the things, the principle 13 principles उससे लिस्ट की है थिंक एंड ग्रो रिच में, तो वो सारे प्रिंसिपल इतने इम्पैक्टफुल है कि अगर उसको वर्टेबली फॉलो करो, उसके पीछे एक बहुत स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. उससे ही आपको पता चल जाएगा ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए और क्या करना चाहिए. नेपोलियन हिल का मेंटर थे एंड्रू कार्नेगी. एंड्रू कार्नेगी वाज द wealthiest man in the world in 1908.
आज से 100 साल पहले, 110 साल, 112 साल पहले। और उसने एंड्रयू कार्नेगी को एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को कमीशन किया था कि आप जाके इनको लिखाओ, ये प्रिंसिपल लिखाओ। And he asked for 20 years. तो उसने उनको पूछा नेपोलियन हिल को कि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, वो आपको लिखना है और उसको हर बार अपने आप को रिपीट करना है। तो नेपोलियन हिल ने बोला कि हाँ बोलो। सो एंड्रयू कार्नेगी ने बोला और नेपोलियन हिल लिख रहे थे, एंड्रयू कार्नेगी, आई एम नॉट ओनली गोइंग टू इक्वल योर अचीवमेंट्स इन लाइफ, आई एम गोइंग टू चैलेंज यू एट द पोस्ट एंड पास यू एट द ग्रैंड स्टैंड। ये तब लिख रहे थे जब वो 19 साल के थे, जेब में $2 का सिक्का था और कुछ नहीं था। इतना ब्रोक इंसान, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन के सामने ऐसा लिखवाया उसने कि एंड्रयू कार्नेगी, रिचेस्ट मैन नहीं लिखवाया कि तुम ये लिखो, एंड्रयू कार्नेगी, आई एम नॉट ओनली गोइंग टू इक्वल योर अचीवमेंट्स इन लाइफ, आई एम गोइंग टू चैलेंज यू एट द पोस्ट मतलब जहां से स्टार्ट कर दो, एंड पास यू एट द ग्रैंड स्टैंड, जहां पे आप रेस कंप्लीट करते हो उसे ग्रैंड स्टैंड कहते हैं, आपसे भी आगे निकलते हो। वो वेल्थिएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बिलियनर, और यहाँ पे 19 साल का रिपोर्टर, जेब में $2, घर पे जाने के पैसे नहीं, और ये लिखा रहा है। उसने पेन रख दी। आपको पता है कि ये कभी नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। नेपोलियन हिल टोल्ड, ये तो आपको पता है, ये आप क्या लिखवा रहे हो मुझसे, ये तो अभी भी नहीं हो सकता, फालतू चीज। उसे क्या बोला, यस दिस इज इम्पॉसिबल अंटिल यू बिलीव। तो मुझे प्रॉमिस करो 30 डेज तक अपने आप को मिरर में रोज सुबह और शाम ये सेंटेंस बोलोगे, मिरर में देख के। देयर इज अ बिग डिफरेंस, यू शुड अफर्म बाय लुकिंग इनटू योर ओन आईज। It gives you a special correction. There is a science behind it. Because once you look yourself into the eye, it gives you certain kind of connection. It gives you certain kind of authority कि हाँ भाई ये होना चाहिए। So उसने एक पहली बार जब गया तो उसका भाई उसके साथ रह रहा था, तो उसको इतनी शर्म आई कि यार मैं बाथरूम में मैं क्या जोर से बोलूंगा तो ये सुन लेगा और हंसेगा और पूरी मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। बाथरूम में गया और मिरर के सामने हल्के से बोला, विस्परिंग किया, जोर से बोला भी नहीं, एंड्रयू कार्नेगी, आई एम नॉट गोइंग टू अचीवमेंट्स इन लाइफ, आई एम गोइंग टू चैलेंज यू एट द पोस्ट एंड पास यू एट द ग्रैंड स्टैंड। पहले दिन उसको क्या है, 7 दिन ये सब बकवास है। सेकंड वीक तक लगा, उसको 30 डेज तक बोला था, 4 वीक्स तक। सेकंड वीक को लगा कि शायद ये हो सकता है। 15 दिन के बाद उसको पता था कि ये होगा, गारंटी होगा। So he became firm just by repeating that sentence to himself for the 15 days every morning every evening। उसके बाद उसने क्या किया, ये बुक लिखी गया। ऐसा कहा जाता है कि एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी लाइफ में 53 मिलियनर्स बनाए थे। उसकी कंपनीज में उसके जो हेड ऑफ सप्लाई था, हेड ऑफ मार्केटिंग था, हेड ऑफ ऑपरेशंस था, वो सारे मिलियनर बने, क्योंकि वो जब यूएस स्टील कॉर्पोरेशन बिक गई देन दे ऑल बिकेम रिच, राइट। तो उसके साथ उसके जो एसोसिएट्स थे, उसके बिजनेस पार्टनर्स थे, कुल मिलाकर 53 ऐसे लोग थे एंड्रयू कार्नेगी के साथ टॉप लेवल पे, जो उसके साथ मिलियनर बने थे उस टाइम पे 1908 में। नेपोलियन हिल हैज मेड मिलियंस ऑफ बिलियनर्स। So that sentence which he wrote became true for the generation। क्यों उसने जो ये बुक लिखी, उसके जो प्रिंसिपल्स है उसको पढ़ के इम्प्लीमेंट करके मिलियंस ऑफ मिलियनर्स बने। और एक मैं आई कैन गारंटी दिस, देयर इज नॉट अ सिंगल रिच पर्सन इन द वर्ल्ड हु हैज नॉट रेड थिंकिंग फॉर रिच, नॉट अ सिंगल वन। ग्रांट कार्डोन की बात करो, आप किसी भी बड़े इंसान की बात करो, दे हैव शॉर्ट रेड दिस बुक इन देयर फॉर्मेटिव इयर्स। It shapes your life, right? So that is a very important aspect of it. एक और चीज, कि जैसे कि आपने बोला कि नेपोलियन हिल यूज्ड टू रिसाइट मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिखूं कि एलन मस्क और फिर ये पूरी लाइन बोलो? Yes. See, right now you think it is a joke. Why? Because it is not yet in your subconscious mind. You're not yet believing it. It is still in the physical realm. It is feeling. So ये आपके सिर्फ conscious mind में। जब तक conscious mind में ना, तब तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, राइट। वंस इट गोज इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, देयर इज नो स्टॉपिंग इट, देयर इज नो रिजेक्शन, देयर इज ओनली एक्सेप्टेंस। तो ये जो आपका डायलेमा है कि होगा या नहीं, वो तो ये वो वहां पे है, मैं यहाँ पे हूँ, हाउ कैन इट बी डन, हाउ कैन। तो ये जो आपके थॉट प्रोसेस है ना, वो जब तक माइंड आपके जो आपका आइडिया है वो आपके कॉन्शियस माइंड में ना, तब तक ये सारे प्रॉब्लम्स है। वंस इट इज फॉर्म इन योर सबकॉन्शियस माइंड, देन देयर इज नो गोइंग बैक। तो आपको फिर पता क्या आएगा, अच्छा ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी सी दिखेगी कि हाँ इससे ये चीज हो सकती है, इससे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आ सकता है, इससे ये बैटरी की लाइफ बढ़ सकती है, इससे ये ईवीज में और बेहतर काम हो सकता है। So now brain will start आप सोच रहे हो कि मैं अगला इलोन मस्क नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि इलोन मस्क के पास उस तरह के आइडियाज थे, उस तरह का पाथ था, टाइम एंड एवरीथिंग।
जर्नी उसकी एक प्रकार से, आपकी जर्नी कोई और तरीके से हो सकती है, लेकिन वंस यू डिसाइड कि भाई आई वांट टू रीपर हिज अचीवमेंट्स इन लाइफ और आई वांट टू अचीव दिस इन लाइफ, आई वुड से दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम पर्सन एज अ बेंचमार्क यू शुड थिंक ऑफ गोल्स एज योर बेंचमार्क. मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि आप किसी बंदे से कंपेयर क्यों करो, क्योंकि बंदे से कंपेयर करने में क्या है पता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे से कंपेयर किया तो आप उसी की तरह रह जाओगे. व्हाट इफ योर पोटेंशियल इज मच ग्रेटर देन दैट, तो आप जिस वो हाँ पोटेंशियल को आप पूरा वो accomplish नहीं कर दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. द लिमिट, तो ये इलोन मस्क वाली भी लिमिट आपने ही डाली आपके उसमें कि आई वांट टू बिकम लाइक इलोन मस्क. ऑफ कोर्स इट इज अ हाई पेडेस्टल, बट इट इज स्टिल अ पेडेस्टल व्हिच यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ. और क्या पता कि 20 साल के बाद वो कहाँ पे. हाँ, और व्हाट इज योर पोटेंशियल, आपका क्या हो सकता है कि आपको पोटेंशियल किसी और फील्ड में उससे भी बड़ा हो, उससे भी वो, और फिर वो लिमिट होके रहता है. यस. सो सिमिलरली इट्स वो रेलेवेंट हो रहा है जो आपने बोला कि रिलेशनशिप्स में भी कोई पिक्चर नहीं मत लगाओ. आपने अगर बंदे को डिसाइड कर लिया ना कि यही चाहिए, तो आपकी लाइफ में ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक होगी वही आगे बैठ जाएगा. यस, सो दैट विल लिमिट योर एक्सप्लोरिंग और लिमिट योर पॉसिबिलिटीज इन लाइफ. Chance of getting much better girlfriend. Yeah, so the only thing is what I'm suggesting, you should look for qualities. Yeah. Qualities to know. Qualities कि हाँ ये quality होनी चाहिए. That is what is compatible with me. So that is much more important thing in relationships. क्या आप भी खुद ऐसा करते हो? Yes, and I don't engage with anyone, even in informal conversation which does not match my qualities, because everything else is waste of time. I see the only scarce resource in world is time. लोग सोचते हैं कि अब पूछते हैं कि टाइम या मनी. The answer is always time. Money can be earned. Money यहाँ पे ना अपने 80 साल के हो जाओगे फिर भी अर्न कर पाओगे, स्टॉक मार्केट से कहीं से भी कुछ भी हो जाएगा. Time cannot be earned. Time is getting spent every passing second. आप हर passing second आपका जो टाइम स्पेंड हो गया, there is no physical way to get it back. And you don't know how much time is left. Yeah. पैसे तो आपको पता है कि भाई चल इतने पड़े हैं मेरे बैंक अकाउंट में. Time you don't know how much you are left. So there is no, the only scarce resource in the entire world right now is time. Right. जो आपके पहले जो हजारों मिलियनेयर्स हो गए, हजारों किंग्स हो गए, उनके सबके पास वो चीजें हैं जो आपके पास है. Time. They ran out of time. Right now you have time which they don't have. So time is one of the most scarce resource in that. तो एक ही चीज जो आपको लाइफ में अगर सही में मैनेज करनी हो तो दैट इज योर टाइम. आप कॉन्शियसली डिसीजन करो कि हाँ मेरे दिन का इतना टाइम मैं इस पे डालूंगा, इस पे डालूंगा, इस पे डालूंगा. ट्राई टू मेक जुडिशियस यूज ऑफ इट एंड द यूज विच यू इंटेंड. सो इसीलिए आई डोंट एंगेज विद एनीवन व्हिच आई थिंक दैट इज वेस्ट ऑफ माय टाइम, या फिर इससे कुछ आउटपुट नहीं आने वाला, देन आई सिंपली से नो. तो दैट इज अ कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे मेरा टाइम बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों पे स्पेंड नहीं करना है जहाँ पे मेरा पोटेंशियल डिग्रेड होता हो, टाइम वेस्ट होता हो. दैट इज इट. So basically, it brings me to one point कि like अगर कोई भी बंदा बुक रीड करना स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, मतलब तो कौन सी ऐसी फर्स्ट बुक आप सजेस्ट करोगे उससे स्टार्ट करना चाहिए? थिंक एंड ग्रो से स्टार्ट करोगे तो दैट विल गिव यू एन बेसिक फ्रेमवर्क कि भाई क्या होता है पर्सनल डेवलपमेंट. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक, ऐसे में पिन पॉइंट नहीं कर सकते हम लोग कि इसी बुक से बेस्ट आइडिया आएगा. दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग कि क्या है कि जितना आप स्टार्ट करोगे एक बुक, उसमें आप कुछ पढ़ोगे, आपको सोचा अच्छा ये बुक क्या है, आप किसी का नाम देखोगे उस बुक पे तो आपको पता चलेगा अच्छा इसी बंदे ने क्या किया था, उसकी बुक पढ़ोगे. इट स्टार्ट्स ऑफ ए जर्नी, इट स्टार्ट्स ऑफ एन रिएक्शन के बच्चा चले इसमें ये पढ़ा, अच्छा इसमें ये लिखा है, ये इस पे कौन सी बुक है दूसरी, ये पढ़ते हैं, चलो ये पढ़ते हैं. सो दिस विल गिव एन मोर ब्रॉड पर्सपेक्टिव कि अच्छा दिस इज हाउ वी कैन डू इट, दिस इज हाउ वी कैन डू इट. देयर आर 5 डिफरेंट थिंग्स के आप कैसे किसी भी चीज़ को आपकी लाइफ में आप जहाँ कुछ जाना चाहते हो, जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, उसमें आपको जो स्पेसिफिक द लेसन दैट यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिकली कैन नॉट बी फाउंड इन वन बुक, बट वंस यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट यू विल स्टार्ट रिलेटिंग द लेसन. हाँ कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो सकती है. सही है. सो लाइक putting an end to our podcast, मेरा जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन है कि at this moment what are you manifesting? Like ये सही रहता है कि हम किसी को बताएं ना बताएं, ऐसा कुछ होता है? I would suggest you should not reveal it to somebody. Why? I'll tell you. अच्छा. Your goals are something that is inside your mind. If you speak to someone else who is not at your same mindset, तो he will try to judge, he will try to bring you down. उसकी से कुछ इफेक्ट आता है? अगर हम अलाउ करें तो आ सकता है, लेकिन अगर मैं अपने घर में मम्मी पापा को बताया कि ये गोल है तो वो सोचेंगे अच्छा ऐसा गोल है और तू ये कर रहा है अभी, इससे कैसे होगा, ये कैसे होगा. सी द थिंग इज कि आपके गोल्स है ना, अगर it is very true to yourself, you should not reveal it to someone. That is what I'm saying, because the world is full of doubters, world is full of
cynics. They are always, there are 100 people who will tell you that it will not happen. Yes. Only one who will tell you that it will happen. So unless and until I find someone who will tell me that it will happen, I don't want to listen to anyone. Yeah. तो तब तक मेरा गोल मैं अपने तो पास ही रखता हूँ क्योंकि मैं तो अपने आप को कह रहा हूँ कि it will happen. Yeah. And even if 100 people are not, It's all about guiding ourselves. guarding the fortress. Yeah. So that is what I'm saying कि ऐसा चीज है कि जो कुछ goals होते हैं हमारे की जो हमें manifest कर रहे हैं, that I know that which is true to myself. That is why I don't share my goals with anyone. There are some general goals. वो तो आप मेरे घर पे आओगे तो vision board पे आपको दिख ही जाएंगे. Yeah, I know. So कुछ goals ऐसा है कि which is fine, like body, car, right, house. So those kinds of things are there on my board that you can always see. Yeah. Some good quotes which are helping me, come up with everyday stuff. So that I already put there. क्योंकि उससे क्या है कि they are not afraid कि कोई सी और के कहने से क्या होगा या फिर they judge me, because I know that will come true. And this is not just my example. Lily Singh, Steve Harvey. अब मैं आपको पूरी 15-20 लोगों का लिस्ट बना के दूंगा. ओपरा विनफ्रे, जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन सबके पास अपने ऐसे विजन बोर्ड्स थे. They openly talked about it in all interviews. Yeah. कि वो और उनकी Jim Carrey. हाँ, yeah, Jim Carrey, even this Matthew McConaughey, this Interstellar guy. He also wrote, "I am going to win an Oscar" in 1994. Oh. He did win it in 2010. So it would come. Of course, there is no. I don't have any doubt in my mind right now that if you put something on your vision board, it will come true if you are true towards that purpose. It all depends upon you and how true you are to that goal, how dedicated you are to that goal. It will come true. There is no doubt about that in my mind. So, like, if you want to summarize everything what we talked till now, what could it be, like, in one sentence or anything? Only one thing is, there is no limit to human potential. The one line that you should burn yourself in the head is, there is no limit to human potential. Human potential पे कोई लिमिट नहीं होती, सारी लिमिट्स सेल्फ इम्पोज्ड होती है. आप जो भी सोच रहे हो आपकी लाइफ में कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो सारी चीजें आपने इम्पोज की हुई आपके माइंड के अंदर. एज आई सेड, इट इज नॉट अ फिजिकल लिमिट. वो फिजिकल वर्ल्ड की लिमिट नहीं है, वो आपकी मेंटल लिमिट है. तो जितने मेंटल रोड ब्लॉक्स क्लियर होते जाएंगे वैसे आपका लाइफ का पाथ क्लियर होता जाएगा. Urjit Dave का motivation. That was really amazing, really insightful and deep conversation with you. Thanks for being here. Pleasure, always pleasure. And I'll link his account in the description. So do follow him as well. He runs a company called Equanimous Technology, and it's based on AR/VR technologies, blockchain and all. So if you want to learn something about that, or if you are into it, then you can get connected with him. And for your doubts as well, you can DM him. He'll be surely happy to answer them all, right? Sure. I also run a YouTube channel, so I'll give the link of the YouTube channel as well. So there also I post content on some of the learnings that I encounter during my learnings and books. So I share lessons from books and teachings there as well.